آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اگر ہم نے یہودیوں کی پوری تاریخ پڑھنی ہو نا، یہودیوں کی، وہ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جتنے عقائد، جتنے اعمال، جتنی برائیاں تھیں نا، وہ ساری کی ساری چھٹے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر مختصراً اجمالاً بیان کر دی۔ اگر پڑھنی ہو تو اس رکوع میں پڑھ۔ فرمایا پہلی برائی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، تو ہیلے بہانے ہوتے ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے، جو آج کے دور کے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا یہ کہا کہ آپ یہ جو لوگ روزانہ آپ کہتے ہو آئیے ایت پاک نازل ہو گئی، آئیے ایت پاک نازل ہو گئی، آج یہ ایت پاک نازل ہو گئی، ایک ہی دفعہ پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کھیلا تھا نا، ایک ہی دفعہ پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ان یہودیوں سے کہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایک ہی دفعہ کتاب نازل ہوئی تھی نا، الگ الگ تو نہیں ہوئی تھی، تو رات ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ تو جب ایک ہی دفعہ کتاب نازل ہوئی تو اگر انہوں نے عمل کرنا ہوتا نا ایک ہی دفعہ نازل ہونے پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب عطا کی تھی اس کے اوپر عمل کر لیتے۔ جب وہاں ایک ہی دفعہ کتاب عطا کی تو وہاں کیا ہیلا تھا؟ ہم جی اپنے رب کو اس ٹائم تک نہیں مانیں گے جب تک ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں۔ وہاں یہ ہیلا، یہاں پہ یہ ہیلا ہے جی نہیں، ہم نہیں مانیں گے جب تک ایک ہی دفعہ نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پورا واقعہ آگے آئے گا 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف میں، وہاں پہ پوری تفصیل ہے۔ یہ 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو پسندیدہ لوگ تھے لیے ساتھ چل پڑے تاکہ یہ قوم کو آ کے گواہی دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا مولا یہ 70 لوگ لایا ہوں، 70 رجلا میقاتا، میقات کے اوپر۔ میقات وہ جگہ تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کوہ طور کے اوپر۔ میقات کہتے ہیں مقررہ جگہ، مقررہ ٹائم۔ جب یہ 70 لوگ آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بجلی نے، ایک کڑک نے ان کو آ لیا، سب کے اوپر موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیا مولا میں تو 70 لایا تھا کہ یہاں پہ دیکھ کے جا کے گواہی دیں گے، ان کے اوپر تو موت طاری ہوگی، یہ سارے کا سارا بلے میرے اوپر آ جائے گا۔ یہ تو پہلے ہی ہیلے بانے کر رہے، اوپر سے سارا بلے میرے اوپر کر دیں گے، میں تو لایا تھا گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے کی وجہ سے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بعد میں ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ جو سامری جادوگر نے مصری عورتوں سے جو سونا جمع کیا ہوا تھا، جب جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی، اس سے بچڑا بنایا سونے کا۔ اس کے بعد کہا یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس کی عبادت کرنی ہے۔ اندازہ کر یہودی قوم کی ہیلا بان، اس نے کلام بھی کر دیا آزمائش کے طور پہ۔ یہ پورا واقعہ آگے سورۃ طٰہٰ میں آئے گا۔ بچڑے کی عبادت کیسے کی انہوں نے، بچڑے کو کیسے بنایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو آپ اتنے جلال میں آگے، اتنے جلال میں آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی ایسے داڑھی کو پکڑا جلال میں آ کے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، فرمایا ہارون میں اپنی قوم تیرے حوالے کر کے گیا تھا، یہ تو شرک کر بیٹھی، تو میری قوم کو نہ بچا سکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی میں نے بڑی کوشش کی پر یہ قوم ہے ہی ایسی ہیلے بہانے کرنے والی، یہ تو گمراہ ہوگی، بچڑے کو خود معبود بنا کے بیٹھ گئی، میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ یہ پورا واقعہ وہاں پہ آئے گا۔ یہ دوسری بڑی خرابی۔ تیسری بڑی خرابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے موسیٰ کو سلطان حاکم عطا کیا۔ حاکم، یہ حاکم کیا تھا؟ کوئی بندہ تھا ساتھ؟ نہیں، حاکم مطلب کتاب عطا کی۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابیں عطا کی جاتی ہیں وہی حاکمیت کے لائق ہوتی ہیں۔
उसी के मुताबिक हुकूमतें की जाती हैं, उसी के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। जब किताब दी, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, यहूदियों ने। हम भी इनकार कर रहे हैं, अमली तौर पर इनकार कर रहे हैं, अगरचे कौली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कुरान, लेकिन अमली तौर पे तो कोई देखे तो कोई हमें नहीं कहेगा ये मुसलमान है, इल्ला माशाअल्लाह बाद लोगों के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब किताब दी तो हमने अमल करवाने के लिए वरफाना फौकहुम तूर, उनके ऊपर कोहे तूर का पहाड़ ऐसे कर दिया कि जैसे अभी उनके ऊपर गिरेगा। जब तक ऐसे रहा कि जैसे गिरने वाला है, वो किताब को तौरात को मजबूती से पकड़े रखा, उन्होंने अमल करते रहे। जैसे ही पहाड़ को हमने सीधा किया, कोहे तूर के पहाड़ को, ये फिर बदअमली में शिकार हो गए, फिर अमल करना छोड़ दिए। उसके बाद बड़ी खराबी इनके अंदर क्या आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हफ्ते के दिन की जो है ना बेहुरमती नहीं करनी। एक दिन रखा ना ताजीम का, जैसे हमारे लिए जुम्मा मुबारक है कि हर शय छोड़ देनी है, हर शय छोड़ देनी है। जैसे जुम्मे की अजान हो फौरन मस्जिद में आना। यहूदियों के लिए आजमाइश थी कि हफ्ते के दिन जो है किसी भी किस्म का शिकार नहीं करना मछलियों का। अब क्या हुआ, ये तो कह दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब मछलियां जो है हफ्ते के दिन ही सारी की सारी वहां समंदर के किनारे पे आए। अब मना भी है, मछलियां पकड़नी नहीं, आगे पीछे मछलियां भी नजर नहीं आ रही। आजमाइश के तौर पे हफ्ते के दिन अल्लाह ताला का हुक्म था, वो सारी मछलियां ऐसे आती कि उनका दिल करता यार इनको पकड़े, बाद में तो नजर नहीं आएंगी। क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो हीले की तरफ आ गए। हीला क्या करना शुरू किया, हीला पहले ये शुरू हुआ कि चलो हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते, यहीं से ना इधर से ही छोटी छोटी नालियां निकाल लेते हैं पानी की। जब छोटी छोटी नालियां निकालेंगे उसके अंदर मछलियां आ जाएंगी, जैसे ही हफ्ते का दिन गुजरेगा हम मछलियां पकड़ लेंगे। पहले ये हीला शुरू हुआ। हमारे यहां भी ये चीज है, कोई भी शय आप बताएं ना, कोई भी शय, इसमें कोई गुंजाइश है, मेरी ये मजबूरी है, मैं ये करना चाहता हूं, आगे ये रुकावट आ जाती है, आगे ये मसला आ जाता है। आखिर में वो सारा मसला बयान करने के बाद मुफ्ती क्या कहता है, यार तेरी मजबूरी है तो जायज है, मजबूरी है तो जायज है। इन्होंने शुरू में हीले से काम किया, बाद में जब दूसरी पुश्त आई ना, दूसरी नस्ल आई, आगे उनकी आल औलाद, उन्होंने तो हीला करना भी छोड़ दिया। उन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त हफ्ते के दिन ही मछलियां पकड़नियां शुरू कर दी, नालियां भी छोड़ दी, नाले भी छोड़ दिए पानी के। डायरेक्ट वहां से, जहां से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था समंदर से, दरिया से, वहां से उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया जब ये नाफरमानी की, हमने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये बंदर और खंजीर अलामत के तौर पे नहीं, हकीकतन बनाया। जब बनाया वो सारे के सारे मर गए थे, उनकी नस्ल आगे नहीं चली। ये गलत है कि ये बंदर और खंजीर वही यहूदियों की नस्ल से आ रहे हैं। कुरान पाक ने फरमाया वो सब के ऊपर मौत तारी हो गई थी, उनकी उनमें से किसी की नस्ल आगे नहीं चली। उसके बाद क्या बयान फरमाया, फरमाया इनका सबसे बड़ा कुफर जो था ना, कुफरों में से एक कुफर ये भी था कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो अहद किया था ना, उसको तोड़ दिया। अल्लाह ताला के साथ अहद क्या था कि अमल करेंगे, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी नबी आने हैं, उनके बारे में जो हमसे वादा लिया गया है तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि नबी आखिर ज़मा आएंगे, उनका नाम मुबारक ये होगा, उनकी तशरीफ आवरी का शहर ये होगा, उनका मस्कन हिजरत ये होगा, तुम सब ने उनके ऊपर ईमान लाना है। जैसे ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए, इन्होंने इनकार कर दिया। और फरमाया क्या कुफर किया, ये पूरी तारीख यहूदियों की एक ही रुकू के अंदर, वह क़त्लिल अंबिया, अंबिया का नाहक कत्ल किया, नाहक। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ इन्होंने कत्ल नहीं किया, चीरा भी, काटा भी, अलायाज़ुबिल्लाह। सिर्फ क्या है कि हमें दीन के ऊपर अमल ना करना पड़े। उसके बाद क्या, जैसे ही आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके पास आए ना कि ये पैगाम है, ये आयत पाक नाज़िल, ये पता कैसे, वही हूबहू जो आज के दौर में हम कहते हैं। सुनिएगा, लफ्ज सुनिएगा, वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ, ये कहते थे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल जो है ना इस बात को समझने से कास, हम नहीं समझ सकते ये दीन, हमें सिर्फ मोटी मोटी बातें बताएं, हम नहीं दीन समझ सकते, हमारे दिलों के ऊपर पर्दा है। हम भी ये कहते हैं यार ये दीन हमारी समझ में नहीं आता है, ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवी जाने, दीन जाने, हम तो सादा से लोग, हमने ये सुना है, अल्लाह माफ कर देगा।
बिल्कुल यहूदी भी यही कहते थे कि यार ये जंगलों में हमने नहीं पढ़ना, ये दीन बड़ा मुश्किल है। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे भी हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं। बताएं आप में से कितने लोगों ने जुमला सुना होगा, यार ये दीन हमें नहीं समझ आता, ये मौलवियों की बातें हमें, मौलवियों की बातें अपनी नहीं है, वो दीन की बात करते हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इनके दिल दीन समझने से कासिर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों को पसंद ही नहीं फरमाया कि ये दीन की समझ हासिल कर सके। आप बैठे हैं ना कुरान पाक, सुबह नमाज फजर टाइम आप आके बैठे हैं, क्यों आके बैठे हैं, बाकी क्यों नहीं आए? आप इस वजह से आके बैठे हैं कि अल्लाह ने आपके दिल को पसंद किया हुआ है कि दीन आके सीखें। ये डबल सवाब है, नमाज फजर के साथ कुरान पाक का दर्स सुनना, कुरान पाक सीखना। उसके बाद फरमाया इनके कुफ्रों में से और क्या कुफर था, इन्होंने हमारी मरियम के ऊपर बहतान लगाया। ये यहूदी कौम, हम में से भी आज हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर लोग दूसरों के ऊपर बहतान लगाते हुए नहीं डरते। फरमाया ये यहूदियों का शेवा है, यहूदियों का तरीका। हमारी मरियम के ऊपर बहतान लगाया, जो तकिया थी, आबदा थी, जाहिदा थी, ताहिरा थी, मुताहिरा थी। और इन्होंने क्या कुफर किया, इन्होंने ये कुफर किया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, सलीब पे चढ़ा दिया। हालांकि अल्लाह ने फरमाया ना वो कत्ल हुए, ना वो सलीब पे चढ़े, बल्कि उनकी शबी की हमने एक बंदा बना दिया जिसको इन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया। वो हमारे ईसा नहीं थे, बल्कि हमने अपने ईसा अलैहिस्सलाम को रफ़अहु इलैहि, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया था। और उनका हमने अपनी तरफ उठाने की अलामत यह है कि जब उनका विसाल होगा, उनकी मौत वाक़ई होगी, तो अलामत यह होगी कि अहले किताब में से हर शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएगा, ये अलामत होगी। उसके बाद अगली बात सुनो कि यहूदियों की बुराइयों में से, बद अकायद में से, बद अकीदियों में से क्या बद अकीदा था? फरमाया कि इन्होंने सूद को जायज करार दे दिया। इनका हर मामला सूदी था। आज मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, अक्सर लोग आके कहते हैं कि यार कौन सा मामला हमारे मुल्क में ये सूद के बगैर हो। यहूदियों का मुआशरा ऐसा था कि हर मामला सूदी था, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया जब सूदी मामला कर दिया उन्होंने, हर किस्म की जायज जो हलाल चीज थी ना, वो हमने उनके लिए मुश्किल कर दी। हमारे लिए मुश्किल हो गई या नहीं हो? ये जो शय हलाल शय मुश्किल हुई है ना, ये मुआशरे की गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने मुआशरे की इस्लाह नहीं की, हम अल्लाह ताला की पकड़ में हैं कि हमारे लिए जो हलाल जराए थे वो बहुत कम हो गए। फरमाया फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम, एक बुराई ये थी व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, ये अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। कितने लोग हैं मुसलमान है, मुसलमान हमारे मुआशरे में, हम इसी मुआशरे में रहते हैं। अगर हमें अपने मुआशरे का नहीं पता तो किसको पता होगा? कोई बाहर का आके बंदा यहाँ बात करेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये बुराइयां हैं। कितने लोग दीन से रोकते हैं? जो दोस्त आउटिंग पे इकट्ठे जा सकते हैं, जो दोस्त बर्गर खाने इकट्ठे जा सकते हैं, जो दोस्त इकट्ठे पार्किंग में जा सकते हैं, जो दोस्त इकट्ठे जो है बाहर किसी भी जगह जा सकते हैं, मैं उन्हीं दोस्तों से पूछना चाहता हूं, वही दोस्त इकट्ठे मिलकर मस्जिद में क्यों नहीं आ सकते? वही दोस्त इकट्ठे मिलकर थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल के दीन क्यों नहीं सीख सकते? वही दोस्त इकट्ठे आकर एक दूसरे को दीन क्यों नहीं सीखा? जब दीन की यार तो मौलवी बन गया, छो यार मौलवी बन गया, और भाई तू मौलवी बनना है तो साढ़े नाल नहीं आना तू कल है। वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, जिस तरह यहूदियों ने लोगों को दीन से रोका, आज का मुसलमान भी दीन से रोक रहा है। यार दुनिया का सारा मामला दोस्त इकट्ठे कर रहे हैं, पर दीन का मामला है तू अलग, मैं अलग, बोला अलग, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। यार अब यार जिसमें हमारा ताल्लुक होना चाहिए था उसमें हमने कतई ताल्लुक कर लिया, और जिसमें कतई ताल्लुक होना चाहिए था उसमें हम आपस में दोस्त ताल्लुक बना के बैठे। बड़े प्यारे दोस्त है माशाल्लाह है यार, इनकी बड़ी फ्रेंडशिप है माशाल्लाह। फ्रेंडशिप जैसे ही दीन का नाम लेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई दोस्ती नहीं रहती। आगे सुनिए, फरमाया यहूदियों के जुल्म है, वाखदिहिमुर रिबा व क़द रुवानु वाकलीम
आखिरी बुराई यहूदियों की जो बयान की हमारे मुआशरे में ना हो, आप कह सकते हैं ना गलत। फरमाया यहूदियों की बुराइयों में से एक बुराई ये भी थी, अक्लिहिम अमवाल अन्नास बिल बातिल, नाजायज जरिए से लोगों के मालों के ऊपर और लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जा करते थे। है या नहीं? आम है। फरमाया जब ये बुराइयां थी ना, वाअतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, हमने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। लेकिन वो यहूदी भी थे ना मदीना मुनव्वरा में, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद मुसलमान हो गए थे, वो भी डर गए कि हमारा जिक्र कहीं नहीं आया। अल्लाह ने फौरन फरमाया ना, सारे ने, लाकिन अर्रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। हबीब, इन यहूदियों में से जो आपके ऊपर ईमान ले आए हैं ना, हम उनके लिए हमने ऐसा अजर तैयार करके रखा है, जब वो देखेंगे उनकी आंखों को ठंडक मिलेगी। फरमाया वो कौन लोग हैं जो ईमान लेके आए, वल मुकीमीन सलात, नमाज पढ़ते हैं, वल मुतून ज़कात, ज़कात देते हैं, वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल करीम पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। फरमाया उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, इनको, क्योंकि अब ये यहूदी नहीं रहे हैं, अब ये मुसलमान बन गए हैं, लेकिन साबका लाहिका की बुनियाद पे हम इनको उन यहूदियों से अलग कर रहे हैं, इनके लिए सनूतीहिम अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर है। यहां मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं सिंपल तरीके से। आयत मैंने क्या पढ़ी, आयत मैं दोबारा पढ़ता हूं, वल मुमिनूना, मुमिनून है ना, मुमिनूना, आगे क्या होना चाहिए था, वल मुकीमून सलाता, मुकीमून, जैसे मुमिनून मुकीमून, अल्लाह ने क्यों फरमाया मुकीमीन? यहां बाल लोगों ने कहा जिनको कुरान की समझ नहीं थी, ये एराबी गलती आ गई। हाँ, एराबी गलती नहीं है, अगर वहां मुमिनून था, यहां मुकीमीन है नमाज के साथ। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ने एराब को बदला ना, एराब कहते हैं जबर जेर पेश को, जब एराब को बदला ना, तो किसी खास अमर की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिलाना चाहता है। खास तवज्जो क्या दिलाना चाहता है? फरमाया मुकीमीन अस्सला, अखुस्सुल मुकीमीन अस्सला, इन में से भी जो मुसलमान हो चुके हैं, इन में से भी मैं उनका जिक्र खास कर रहा हूं जो नमाजी हैं। ये माना है, उनका भी जिक्र खास कर रहा हूं जो नमाजी हैं। जब एराब बदला ना, जबर जेर पेश बदली, अचानक कुरान पढ़ने वाला रुक गया है, ये मुमिनून, यहां मुमिनून था, यहां मुकीमून होना चाहिए था, मुकीमीन क्यों है? वो ठहरा, उसने गौर व फिक्र किया, गौर व फिक्र करने के बाद उसने कहा कुरान का एराब सही है, अल्लाह ने ये एराब बदला क्यों? इस वजह से ताकि नमाज की जरूरत और अहमियत की तरफ इशारा हो सके। सुभान अल्लाह, नमाज इतनी अहम है कि अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर, उसलूब के अंदर इशारा, क्योंकि नमाज ऐसी, आप नमाज पढ़ने आए हैं ना, तो आपने दीन की नसीहत सुन ली। अगर हम यहां नमाज पढ़ने ना आते, मैं ना पढ़ने आता, तो नसीहत कर ना सकता, आप ना पढ़ने आते तो नसीहत सुन ना सकते। नमाज हमारी नसीहत करने और नसीहत सुनने का जरिया बनी, इसलिए फरमाया नमाज बड़ी जरूरी है। जब मस्जिद में आओगे, कोई ना कोई तो नसीहत सुन सकते हो ना, कोई ना कोई किसी को नसीहत कर सकते हो। और हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादहू, फरमाया नसीहत करना ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, और नसीहत को प्यार से सुनना ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। कभी भी कोई नसीहत करे ना, तो प्यार से सुन लिया करें, जितनी भी सख्त हो, ये ईमान की अलामत होती है।